Now today we will discuss on the impact of AI tools on teaching and excellence. So first of all, I want to introduce what is AI tools for the teachers. It is very important to understanding exactly. Now today we will discuss about the impact of AI tools on teaching excellence. So dear participants, welcome to the presentations on this topic on the impact of AI tools on teaching excellence. In this presentations, we will discuss about the artificial intelligence can enhance the teaching and learning experience. Artificial intelligence mean AI can enhance the teaching and learning experience. We will discuss about the various AI tools can be used by the educators to improve student engagement, personalized learning, and overall classroom effectiveness. And there is a lot of topics there. First of all, we should understand exactly what is artificial intelligence. I think so everyone know about this artificial intelligence. तो सबसे पहले we know exactly in very short exactly how the artificial intelligence work. You know? So artificial intelligence is the rapidly changing the world. To education is no exceptions. This is very important. The artificial intelligence is rapidly changing the world. You know? And education is not exceptions. AI tools can be used to automate tasks, personalize learning, and provide real-time feedback to the student. So dear participants, focus on these AI tools can be used. What use the automate the task whenever you are doing a task, the AI with the help of the AI you can do your work with automated tasks. The personalized learning and provide real-time feedback to the student. This can help the teacher to free their time or to focus on more creative and engagement teaching method. It's mean AI tools save your times, focus on creative and engagement teaching method. So this is also the very important point that whenever you are teacher, you can save your time with the help of the AI tools. The next one is we will discuss about the benefits of AI tools for the teachers. The slide is visible or not? The slide visible or not? Please, dear participant. Yes, sir, you are visible. Slide visible or not? Slide is not visible. Slide is not visible. Okay. Now visible? Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you. So,
So now we are discussing about the benefits of AI tool to teachers. Actually, I have already told you that the AI tools is work for the automated tasks. है ना, किस तरह से AI can automate the tasks such as the grading papers, creating lesson plans and managing the students. है ना? तो क्या क्या मतलब क्या कर रहा है, क्या बेनिफिट्स है इसके? बेनिफिट्स ऑफ AI फॉर द टीचर्स: ऑटोमेटेड टास्क, इट इज क्रिएट, है ना, ऑटोमेटेड टास्क जिस तरह से एज ए ग्रेडिंग पेपर्स, creating lessons and managing students. The other one is personalized learning. This is also very helpful for the personalized learning. AI can help the teachers provide the personalized learning experience for their students. With the help of the AI tools, teacher can track the student progress, analyze their students' strength and weakness, and tailor the lesson plan to the each individual student. This have ensured that the each student is receiving the right amount of the attentions and support to the achieve the academic success. So other the benefit of the teachers for the AI tool, it can be personalized learning, especially attentions and every uh, students. The next one is differentiated instructions. AI can also help the teacher differentiate instruction more effectively by understanding each student's individual needs. AI tools can provide teachers with the recommendations for how to adapt their lesson and activity to meet those needs. This can help to ensure that all students are able to learn and succeed regardless of their learning style or pace. So it is create the differentiation instructions, by understanding each student individual's needs. AI tools can be provide teachers with the recommendations for how to adapt their lesson and activities to meet those needs. So this is the differential instructions. The other one is assessment and feedback. So AI can also help the teacher with assessment and feedback. For example, AI tools can be used to grade essay, provide feedback on student works, and generate the personalized quizzes and tests. This can be help teachers to save time and focus on providing more meaningful feedback to their students. The other one is help teachers to identify and support the struggling student. Help teachers to identify and support struggling students. So AI tools, exactly, and the AI tools work can be used, AI tools can be used to help teachers identify students who are struggling and provide them with the support they need to succeed. Exactly, it is very important point to the teachers. Whenever they are teach, they can easily identify which one, which student is very weak in the class. For example, AI tools can be used to track student progress and identify students who are risk for the falling behind. Who is risk of the falling behind. So it is very, very important to understand the teachers, which student is the very weak in the class. Whenever the student, the teachers will identify the student, he can help their students. The other one is to provide student with the access to real-time feedback and support. AI tools can be used to provide
students with the immediate feedback on their works and to answer their questions in real time. This can help students to learn more effectively and efficiently. तो ये नहीं है कि आपने बहुत देर में क्या किया, उसका रेस्पॉन्स ही नहीं आया, फीडबैक ही आप स्टूडेंट का नहीं दे पाए. तो बट द AI tools help us to find out and give us the immediately feedback on their works and answer their questions in real time, you know, real time, immediately, you know. So this can help the student to learn more effectively. जब कोई स्टूडेंट जान जाएगा उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो he can improve himself or herself. So this is very important कि provide the student with the access real time feedback and support. जब उसे तुरंत एकदम तुरंत में आपको एक इमीडिएटली जब उसको फीडबैक मिल रहा है कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है ना, कैसे इसको करना चाहिए, तो वो इमीडिएटली ही कैन लर्न, है ना. The other one we will discuss about how to use AI tools for the teaching excellence. So we will discuss the some AI tools on practical after this 4 and 5 slides. So first of all, we should understand exactly choose the right tools. मार्केट में बहुत सारे टूल्स है. What you should understand, you should think what tool is very important for you. So this slide says that choose the right tools. There are many different AI tools available, so it is important to choose the one that are right for your needs. Consider the specific tasks you want to automate, the level of support you need, and your budget. कि आपके पास पता चला कि 10 या 15 टूल या 4 या 5 टूल्स आपने सेलेक्ट किया और उसी में आप उलझे हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, you should choose the any one tools which is more beneficial for you. So choose the right tools. First of all, you should choose the right tools. The next one is start small. Don't try to implement too many AI tools at once. Start with the one or more tools, more AI. Start with the one or two tools to get using them in before the adding more. सबसे पहले कुछ ही मतलब थोड़े से ही में आपको काम चलाना है. ऐसा नहीं करना है कि आप यार इतने टूल से आएंगे और मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट द स्मॉल टूल. पहले एक लीजिए, फिर दूसरे समझिए, फिर तीसरे का फीचर समझिए. गेट फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स. Ask your student for the feedback on AI tools you are using. This will help you identify which tools are most helpful and effective. Got it? Exactly. आपको पूछना पड़ेगा अपने स्टूडेंट से कि कौन सा जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट से फीडबैक लेना पड़ेगा. वो जो टूल्स है वो बहुत इफेक्टिवली टूल्स कौन सा है, जो इफेक्टिवली टूल्स अच्छा होगा, जो इफेक्टिव होगा टूल्स, वही आपको यूज करना है on the basis of the feedback from the student. Monitor student progress. Use AI tools to monitor student progress and identify area where students need additional support. तो AI tools को आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आप AI टूल्स का यूज कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट को मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस का सिस्टम अवेलेबल है नहीं है ना. तो उसको भी आपको स्टूडेंट्स को भी मॉनिटर करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. द नेक्स्ट वन इज बी माइंडफुल ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग AI, है ना. हमेशा एथिकल इम्प्लीकेशंस भी जब AI यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द AIs, हमेशा आपके माइंड में मतलब केयरफुल होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि हम उसमें एथिकल इम्प्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? AI tools can be powerful, but it is important to be the mindful of ethical implications of using them in the classroom. Make sure that you are using AI tools in a way that is fair,
equitable and respectful the student privacy. तो ये सारे फीचर्स होना चाहिए. Ethical considerations is most important whenever we are using the AI tools, है ना. तो इसमें AI tools in way that is fair होने चाहिए, equitable होने चाहिए, bias नहीं होना चाहिए, respectful of the student privacy, और जो स्टूडेंट की प्राइवेसी है उसको भी हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम ethical considerations of implication of the using AI. The next one, now we will discuss about there are the 6 AI tools which is very important for the teachers. Now, day one, we will discuss about the Copilot educations, BAPIC AI tools, Google Bard. Other day two, we will discuss about the Eduate, Plato, and ChatGPT. So today we will discuss about the Copilot education first off, and second BAPIC AI. Okay, so we will go next slide. And exactly, first of all, we should understand exactly what is Copilot educations. The Copilot education is the game-changing AI platform designed to support and enhance educators' creativity and efficiency, powered by the advanced natural language processing and machine learning algorithm. Copilot education assists teachers in develop lessons plan, generating interactive students and providing personalized feedback to the students. Its intuitive interface empower educators to create engaging and tailor the learning experience, making teaching a more interactive and rewarding process. So start this practice. I want to know okay, how many participants are from the university level and how many are from the schools level. So kindly can you write in chat box how many people are from the university. तो उसी तरह से फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें क्या करना है और स्कूल लेवल पे हमें किस तरह से इन इन टूल्स को मैनेज करना है. तो kindly write down here in chat box how many people are from university and how many people university. Yes. I think the most of the peoples are from university, है ना? I think only there are three reply in chat box. Only there is a 3 reply in chat box. May I know? May I know about the how many peoples are from the university? Only 3 people are from university. Institute. Mukesh. Okay. Okay. University. Okay. I think the most of the people are from university. Okay. So we will discuss about how to अच्छा, okay, thank you. Okay, thank you very much. So can you write here can you write here any subject related to your you want to teach? कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को चाहते हैं, सब लोग अगर लिख देंगे तो उसी हिसाब से वी विल डिस्कस हियर ना, अदरवाइज वी विल टेक अवर एनी टॉपिक रैंडमली. तो कैन यू राइट न्यूरल नेटवर्क? ओके, मुकेश कुमार जी, न्यूरल नेटवर्क एंड अनदर वन. Yes, you can write your topic here. You can write topic here. Yes, you can write your topic here. Okay, Mukesh ji, renewable energy sources here. Thank you. Waste management. Okay, Shiza. And information relative.
Okay, okay. So first of all, we will discuss the, I think there is a Mukesh Kumar Singh's topic, renewable energy sources and neural network. So, okay. First of all, Copilot, na? First of all, we will click here in Copilot. This type of interface we will open whenever you are click here. मैंने इसमें एक्चुअली क्या है ना, लॉगिन नहीं किया है ना, तो अगर आप वो इसमें लॉगिन कर लेंगे तो एक आपको अपने ईमेल आईडी देना पड़ेगा, उससे आपको लॉगिन करना है। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी लॉगिन, तो ये इस तरह से इंटरफेस है, लेकिन आप यू कैन लॉगिन है ना, यू कैन लॉगिन एंड यू गो दियर। तो वो कुछ नहीं, वो आपसे कहेगा कि काइंडली प्रोवाइड योर जीमेल, जीमेल है ना, और साइन इन। तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में करेंगे? को पायलट। को पायलट में देखिए तीन चीजें ये दी हैं, डैशबोर्ड, ठीक है, वर्कशॉप, हिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्कशॉप पे जाएंगे। ठीक है, वर्कशॉप के बारे में हमें ये इतना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ रेसिपी बिल्डर्स, ठीक है, क्यूज बिल्डर, लेसन प्लानर, एजुकेशनल हैंडआउट, पावर पॉइंट जनरेटर, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, आइडिया जनरेटर, एआई फ्री स्टाइल, रियल वर्ल्ड बेनिफिट, प्रोजेक्ट जनरेटर, राइटिंग फ्रॉम स्टूडेंट रिपोर्ट्स एंड पेरेंट्स ईमेल। तो देयर इज ए 9, 12, 1 to 12 and 30. There is 30 points in this Copilot app or AI tools. We will discuss about this. First of all, we will discuss about recipe builder. Recipe builder क्या है? Combine all the best tool into the one creation, generate a lesson plan, PowerPoint and more. तो क्या कह रहा है रेसिपी बिल्डर में? क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिपी बिल्डर के बारे में जब हम बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इन्होंने पूरा फॉर्मेट क्रिएट करके दे दिया कि आपको टॉपिक ऑफ द लेसन एरिया, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में हमने क्या बताइए, क्या और ग्रेड क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि चूज क्लास एंड ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल क्या है, आप आज चाहते हैं कि बीए लेवल का है ना, यानी कि जो हमारा है जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल बीएस या ग्रेजुएशन लेवल का। हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का हम चाहते हैं। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बस जनरेट रिसोर्सेज, और अगर आपको पावर पॉइंट जनरेट करना है तो यहाँ के लिए करेगा, तो जो भी रेसिपी बिल्डर्स होगा उसमें पावर पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट डाउन यूर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लेवल, व्हाट्स द लेवल यू आर टीच, ग्रेजुएशन लेवल। तो क्लिक ऑन जनरेट सोर्सेज। तो ये आपको क्या होगा, रेसिपी बिल्डर्स, ये आपको जनरेट हो जाएगा कि आपका एक्चुअली क्या है ये। ठीक है, कंबाइन ऑल द बेस्ट टूल्स इन योर क्रिएशन, जनरेट द लेसन प्लान एंड पावर पॉइंट एंड। तो ये कर देगा, आपका लेसन प्लान को क्रिएट कर देगा और पावर पॉइंट कर देगा। जस्ट वंस इट इज क्रिएट, इट विल टेक सम टाइम, इट इज जनरेटेड। तो इसी तरह से दूसरे भी इसमें टूल्स है। तो देखिए इसने क्या कर दिया, इसने आपका ये एक पीपीटी क्रिएट कर दिया आपके लिए, ठीक है ना, पावर पॉइंट जनरेट कर दिया। ये क्या पावर पॉइंट जनरेट कर दिया, जो आपने पूछा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में, ठीक है ना, ये एक पावर पॉइंट आपको जनरेट कर दिया। ठीक है, क्या पावर पॉइंट जनरेट कर दिया, देखिए ये पूरा आपको बता दिया कि आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से एक पावर पॉइंट जनरेट करके, है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट को कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है, सोलार एनर्जी के बारे में बता दिया है, वाइंड एनर्जी के बारे में बता दिया है, हाइड्रो पावर के बारे में बता दिया, जो जो थर्मल एनर्जी के बारे में बता दिया, है ना, बायोमास एनर्जी के बारे में बता दिया,
एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से बता दिया, डिसएडवांटेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बता दिया, है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बता दिया, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इकोनॉमी के बारे में बता दिया, फ्यूचर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में भी बता दिया, है ना, द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बता दिया, है ना, एंड कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के बाद में समरी। तो ये आपको 15 बहुत इजीली लैंग्वेज में जनरेट कर दिया इसने, 15 स्लाइड्स, है ना, 15 स्लाइड्स पावर पॉइंट में जनरेट कर दी, और वो आपको बता दे कि हाउ कैन यू टीच द स्टूडेंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ द पावर पॉइंट। दिस इज द रेसिपी बिल्डर, है ना, कि आपने कोई एक टॉपिक डाला और पूरा टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको एक एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीके से this मतलब AI tools create and generate the very smoothly and very effective slides, है ना, रेसिपी बिल्डर। तो you can use, है ना, you can use this है ये खूब we can understand कि exactly what is the, है ना, देर इज ऑल टॉपिक कवर ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल renewable energy sources are forms of the energy that are renewable and can be used to generate electricity and power to the world. Renewable energy sources include the solar, wind, high hydropowers, geothermal, biomass energy. These sources are the renewable and provide the clean sustainable energy. ठीक, तो ये सारा क्या कर दिया, ये आपको पूरा एक रेसिपी, एक बिल्ड कर दी इसने, ये प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट कर दिया कि किस तरह से आपको एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बहुत शॉर्ट में पढ़ाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे क्या कर दिया, एक रिसोर्स कर दिया। तो ये फाइल नेम आ गया, यहाँ पर पीपीटी हो गई, यहाँ पर आप कभी भी आप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस जी। ठीक है, ये हो गया। तो द नेक्स्ट वन इज क्यूज बिल्डर, कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं, you will take the another one is, आप ये चाह रहे हैं कि we will take वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपने क्या किया, सपोज है आपने क्यूज का नाम डाला कि वेस्ट मैनेजमेंट में मुझे चाहिए, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या है, टू गेट स्टार्ट गिव योर क्यूज एंड नेम देना है, वेलकम टू कोपायलट क्यूज बिल्डर। तो ये क्यूज बिल्डर क्या क्या करता है, मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, लेट अस स्टार्ट। देखिए बहुत ही ज्यादा ये जो आपको क्वेश्चंस आंसर करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि क्या किस तरह से, मल्टीपल चॉइस फिल। ठीक है, कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। ठीक है, क्यूज शुड बी कवर, क्यूज शुड बी कवर, क्या क्या रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बता दिया कि ये चीज को हमें कवर करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर, ओके श्रेष्ठता में डिस्कस अबाउट। ठीक है, तो अब इसमें करना है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस को ना, आपको 5 क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देगा, है ना। ठीक है, अब टॉपिक है, आप यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटन रेस्पॉन्स कमिंग सून, ग्रेड लेवल है, किस लेवल को चाहते हैं और क्या चाहते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें चाहे आप ऐड न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट, ग्रेड लेवल क्या है, ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन। ठीक है, अब क्या करना है इसको, जनरेट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दिस शुड बी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये देखिए ना, ये पूरा क्वेश्चंस आ गए। आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को, फिर शुड बी डिफाइन द बेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन दे दिया, इस पर ये क्यूज आपके क्रिएट करके यू कैन क्रिएट द पेज फ्रॉम द दिस टॉपिक। तो देखिए ना,
व्हाट इज द डिफाइन द वेरिएशन, ये जो पूरा 5 आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1, और यहाँ पर आप दूसरे भी क्वेश्चन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ऐड द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन 7, मतलब जितने भी आप क्वेश्चन अगर चाहेंगे ना, इसमें यू कैन क्रिएट हियर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिसाइकलिंग, ठीक है, जो भी जितने भी 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60 जितने भी चाहेंगे आप, यू कैन, ठीक है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग, तो ये मतलब यू कैन क्रिएट है ना क्यूज आल्सो, अभी स्टूडेंट्स को आपको कोई क्यूज देना है, तो इस क्यूज को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और लेकिन अगर आप इसकी को पायलट या किसी भी एआई टूल्स का हेल्प लेंगे, तो यू कैन क्रिएट द ऑल क्वेश्चन विद इन अ few minutes, not a few minutes, few seconds, है ना। इफ यू हैव एनी टॉपिक, देयर इज ओनली 2 वर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस की जरूरत नहीं, 2 वर्ड्स में you can create the entire queues in 2 words. The waste management, that's mean you can create there is a lot of questions and queues. There, for example, देखिए 10 questions हमने किए, you can create. All questions are different. एकदम same questions नहीं होगा. You can write here, you can see here. What is the definition of waste management? What is the most effective way to the reduce waste? है ना? What is the primary roles of the waste management personnel? What are the economic implications of proper waste management, है ना। waste governance regulations are related to waste management, है ना। which of the following activities is considered to the part of the waste management, है ना। what is the primary purpose of the recycling, and what is the difference between the reducing and reusing waste, है ना। what is the primary method of the disposal for the hazardous waste, and what are the 3 RS or R of the waste management, ठीक है ना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो ये क्या है, देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस में क्रिएट करेंगे, क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने ये देखा कि जनरेट क्वेश्चंस करता है आपको, पहले तो 5 क्वेश्चंस को जनरेट करेगा, फिर उसके बाद यू कैन न्यू क्वेश्चंस है ना, तो वो न्यू क्वेश्चन आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और यू कैन यूज दिस टूल्स, these tools can be help you to creating the queues in a very fast, है ना। कितने just a few second you can create here, just a few second you can create here, there is a 10 second you can create a questions. What is the most important element of the effective waste management plan, है, minimize of the waste, poor disposal of the waste, recycling of the waste, education of the stakeholder, वो बार लास्ट में आपको आंसर दे रहा है exactly what's the answer is this questions, education of the stakeholder। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चंस को अगर आप क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यू विल टेक 5 to 10 minutes to creating a questions, generating a questions and manually आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आराम से कोई क्वेश्चंस को लिखने में लग जाएंगे, लेकिन एआई टूल्स इट विल बी टेक यू एन 11 to 10 सेकेंड, और 10 सेकंड में आप कोई क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, तो देयर इज ए 5 to 10 minutes, देयर इज ए 10 सेकेंड, तो कितना डिफरेंस हो गया। तो किस तरह से आप अपने अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, और उस टाइम को आप दूसरे किसी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वार्निंग यू कि जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, एक्चुअली इट इज जनरेटेड बाय द एआई टूल्स, तो आपको इन क्वेश्चंस और आंसर को टैली करना पड़ेगा, मतलब यू चेक इट कि दिस इज एग्जैक्टली प्रॉपर और नॉट प्रॉपर। ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा कि टाइम तो बहुत बच गया है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट कर दिया और हम तुरंत स्टूडेंट्स को दे दें, नहीं, यू शुड चेक। कभी कभी होता है कि एआई टूल्स, जो एआई होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जो एआई टूल्स, जो एप्स होते हैं, वो कभी कभी आंसर, क्वेश्चंस और आंसर को भी इन प्रॉपर वे में दे सकते हैं, जो बाइज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यू शुड चेक इट कि एग्जैक्टली दिस इज गुड और नॉट गुड,
है ना। तो ये थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें दो चीज ऑप्शन देखिए, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसको आप पीडीएफ में में डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं तैयारी के, या क्लिक टू शेयर, या फिर आप किसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या शेयर कर सकते हैं, ये आप जो भी लिंक है इसको अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, कि यू कैन, क्या कर सकते हैं आप इसको पूरा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए देखिए पूरा आपको पूरा पता है, क्यूज कवर द दिस क्यूज शुड बी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड आंसर वेस्ट मैनेजमेंट डिफरेंस टाइप ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर इसको आप यू कैन एक्सपोर्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो क्या हो गया, ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी ये आपको ठीक है, पीडीएफ में देखिए नेम डेट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर जो जो क्रिएट किया गया है, जैसे आपने उसमें जब देखा, तो आपने देखा कि वहां पर आंसर भी दिया गया, लेकिन इसमें क्या गया, वो आंसर सिर्फ टीचर्स के लिए दिया गया, यू कैन सी द आंसर, है ना वहां पर। लेकिन वहां पर जब हमने प्रिंट आउट लिया इसका, जब हमने पीडीएफ क्रिएट की, तो वहां पर उन्होंने आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये पीडीएफ वी आर यूजिंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या किया, ये सारी चीजें दे दी गई है, ठीक है, 11 क्वेश्चन है यार, है। व्हाट इज द डिफाइन द वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए डिफाइन, ये सारी चीजें देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस, ये यहाँ पर इन्होंने दूसरे पेज में दे दिया है, यानी कि आपको जो आंसर दिया है ना, ये दूसरे पेज में दे दिया, ठीक है, वो जो सारे क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन एक जो पीडीएफ की कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, और दूसरी आप अपने स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो ये दिस इज ए क्यूज बिल्डर फॉर द कोपायलट एआई टूल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ नाउ व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द, है ना, फॉर एग्जांपल जब हमने सारी चीजों के बारे में कर दिया, तो नेक्स्ट वन इज वी विल यूज फॉर एग्जांपल लेसन प्लानर, है ना, we will take the another uh, subject is information retrieval, ठीक है, second we will take it and we will take it and go to lesson plan, कि अब यहाँ पर दिया है कि आपको सेव टाइम टू की ड्राफ्ट लेसन, तो अब हमें किसी भी फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल रिट्रीवल पर एक लेसन प्लान क्रिएट करना है। भाई कोई लेसन प्लान क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, आप कोर्स क्या है यहाँ पर, ग्रेड सोशल स्टडीज, अब स्टैंडर्ड क्या है, आपने कहा कि भी मुझे ग्रेजुएशन लेवल का है, पीजी लेवल फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मुझे जनरेट करना है, ठीक है ना। और इनफॉर्मल रिट्रीवल अगर आपको चाह रहे हैं कि मुझे ये साइंस में चाहिए या नहीं चाहिए जो सब्जेक्ट में, तो यू कैन क्रिएट वेरी वेरी इजीली जनरेट द लेसन इट लेसन प्लान क्रिएटेड इन विद इन मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, मतलब कोई भी लेसन प्लान बनाने के लिए यू विल टेक हाउ मच टाइम, है ना, हाउ मच टाइम यू विल टेक इन क्रिएट इन लेसन प्लान, जरा देखिए, लेसन प्लान इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पॉसिबल मटेरियल्स नीडेड, एंटीसिपेटरी सेट, मॉडल प्रैक्टिस, गाइड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, कॉमन एरिया ऑफ स्ट्रगल्स, क्लोजर्स, ठीक है, वी श्योर आज द क्वेश्चन आफ्टर ऑफन रिलेटेड टू कॉमन एरिया ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है। तो ये क्या किया, एक हमें एक लेसन प्लान क्रिएट करके दे दिया, किसके बारे में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्लोज ग्रेजुएशन के लेवल के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ द इंफॉर्मेशन retrieval and how these methods can be used to locate the access information from the various sources,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इंक्लूडिंग ऑनलाइन सोर्स, लाइब्रेरी, database and subject specific data. Students will be able to describe the importance of the using keywords when searching for informations online. So student will be able to identify the appropriate sources for their research and explain how to access the evaluate their sources. Student will be able to explain the importance of understanding copyright laws and citing sources when the using information from the other sources. ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया कि ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं और पॉसिबल मटेरियल्स क्या क्या नीडेड है। टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशनल हैंडआउट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, computers for online search activities, library database handouts, examples of the subject specific database, keyword search activities worksheet, citing sources handouts, short video on information retrieval. ठीक है। anticipatory said क्या, begin the lesson by the engaging the class discussions। पूरा ये पूरा आपका ये पूरा मेथड क्या है, मॉडल प्रैक्टिस दिस टीचर कैन प्रोवाइड द एक्सप्लेन example of an online search demonstrate how to keywords to narrow down and search result. The teachers can ask the class of the identify। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पूरा जो लेसन प्लान टॉपिक और लेसन प्लान ये हमारा क्रिएट हो गया है ना। यू कैन क्रिएट क्रिएट क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेसन प्लान चाहिए तो यू देयर इज ए, आपको क्या है ना, ये जो आपको यहाँ पर 360 का लिमिट है, 360 आप अल्फाबेट यहाँ पर ठीक है डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको यू कैन गो दियर ना को इन विच कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बी ग्रेजुएशन है ना, पीएचडी फॉर एग्जाम्पल वी यूज इन पीएचडी। तो जब आप पीएचडी के लिए जनरेट करेंगे तो इसका मेथड्स और क्या होगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आपने जो एक्सेस था ना वो आपने अचीव कर लिया, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पैसे देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं इसकी, हम एक और दूसरी चीज कि हम इसको एक दूसरे ईमेल से हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे ईमेल से लॉगिन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा फिर ये हमें, तो अब ये दूसरा देगा नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हम इसको इसकी जो होती है इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, वी विल लॉग आउट करेंगे। हाँ,
तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली उसका जो जो फ्री का जो वर्जन था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यू कैन लॉग इन द अनदर। जब आप ऐसा हो तो आप दूसरा कोई ईमेल आईडी अपना यूज कर सकते हैं। तो लॉग इन पे जाएंगे, जैसे हमने शुरू में बताया था, वो हमारा डायरेक्ट लॉग इन हो गया था। लॉग इन में जाएंगे, बहुत ईजी है। लॉग इन में जाने के बाद यू कैन, है ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। साइन इन का ऑप्शन दिया है, वर्ड, वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन विद द गूगल चले जाएंगे। तो ये बहुत इजी है, साइन विद द गूगल बहुत इजी है। जो हमारा ईमेल आईडी है वो हमारे यहाँ से साइन अप साइन इन हो जाएगा। ठीक है, तो जो सा भी हम यूज करना चाहें तो वी कैन यूज हियर फ्रॉम एनी, है आपने जो भी हमारा जो है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाला लिया, ठीक है। देखिए ना, तो अब ये जिस तरह से हमारा वहां पर इंटरफेस खुला था, उसी तरह से हमारे यहाँ पर एक इंटरफेस खुलकर आ गया है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लेसन प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेसन प्लानर तो डिस्कस हो ही गया है ना। हाँ, हम लोग पीएचडी लेसन प्लान के, हाउ टू क्रिएट द लेसन प्लान फॉर द पीएचडी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अबाउट इनपुट इंफॉर्मेशन, किसके लिए, पीएचडी, पीएचडी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पीएचडी पे क्रिएट किया। पीएचडी पे क्रिएट करने के बाद जनरेट जनरेट कर दिया। तब हम जनरेट करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा पूरा हमारे पास एक एक पूरा लेसन प्लान क्रिएट होके आ जाएगा कि हाँ, अगर आप स्टूडेंट जो पीएचडी के स्टूडेंट्स है आपके सुपरविजन में, दे आर डूइंग पीएचडी, तो वो किस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग इसको बता सकते हैं उनको कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आपको करना है। तो आप इसको, ये तो फोर, टू वर्ड्स का ओनली अगर ये है, तो यू कैन क्रिएट, है ना। आप इसको 360 वर्ड्स तक आपको इसको कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लेन करके ना, फॉर एग्जाम्पल का, तो वो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक है, लेसन प्लान इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है, पूरा ये दिया है। पॉसिबल मटेरियल नीडेड, एंटीसेप्टिव मॉडल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। ये सारी चीज़ें होना चाहिए जो भी एक रिसर्चर पीएचडी लेवल पर, अगर आप कोई लेसन प्लान को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें अवेलेबल है। जिस तरह से आप पीजी लेवल पे अप्रोक्सीमेटली, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होके ये हुआ। और आप क्या कर सकते हैं, आप ये इस पे आपको शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं, है ना, पीडीएफ कर सकते हैं, वर्ड में, यानी आपको इसको किस लिंक लिंक कॉपी कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, और वर्ड में भी कर सकते हैं। तो यू कैन, और या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं ना, या फिर आपको किसी में भी क्रिएट कर, वर्ड में क्रिएट करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ करते हैं, पीडीएफ में आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लेसन प्लान हो गया। तो नेक्स्ट वन भी विल डिस्कस अबाउट कि जो एजुकेशनल हैंड आउट्स है, कि आप क्रिएट ए डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर हैंड आउट टू द पेपर ऑफ योर सेल्फ टू स्टूडेंट टूल फॉर लेसन दिस टूल्स गोज ग्रेट पेयर्स विद द लेसन प्लानर, ठीक है। तो हैंड आउट क्या है, देखिए किस तरह से हैंड आउट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोर्स क्या है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर साइंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी वी विल डिस्कस, जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या था, हमने इन्फ्लुएंसर रिट्रीवल के बारे में बात कर ली। हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करें, है ना, कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमने बात की। तो क्या है, कोर्स लेवल क्या है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। अब क्या है, अब इसमें आप क्या दे सकते हो, पीजी लेवल पर दे सकते हो ना, कोर्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, जब ऑल ऑल आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल। तो हमने, फॉर एग्जांपल हमें कोई एजुकेशनल हैंड आउट क्रिएट करना है, तो बहुत इजीली है। देखिए जनरेट, बस करना कुछ नहीं है आपको,
एक टॉपिक लेना है आपको, और आपको क्लास के बारे में डालना है कि आपको किस क्लास के बारे में चाहिए, है ना। तो यू कैन गो जनरेट या you can generate each and everything. It will take the 50 second or 40 to 50 सेकेंड, है ना, तो वो जनरेट कर देगा आपको। और देखिए किस तरह से एजुकेशनल हैंडआउट्स को आपको तैयार करता है, ये आप देखिएगा, मतलब इतना कम टाइम में और इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ठीक है, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर हैंडआउट कवर्स क्या करता है, व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, एग्जांपल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, effect of the consumer behavior of business and marketing, solution for the consumer behavior, conclusion, handout. What is the consumer behavior, देखो पूरा हैंड आउट जो फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर है, यानी कि आपके स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी वेन एवर यू आर क्रिएट, यू विल क्रिएट द एजुकेशनल हैंड आउट, यानी एक एक चीज को आपका स्टूडेंट कैन बी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इन इन डिटेल, बहुत ही ज्यादा इन समरी फैक्ट। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से यू कैन रीड व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी, ठीक है, हाउ टू इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक द डिसीजन अबाउट द परचेज यूज एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो पूरा दे रखा है फैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, देयर आर सेवरल फैक्टर दैट, ये होता बहुत सारी चीजें आपके बुक्स में किसी में या समराइज करने के बाद या किसी से सर्च करने के बाद यू गेट क्या होगा, बहुत सारा आपको डिटेल मिलेगा। लेकिन जब इसमें आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा दो, या आपने जो दो वर्ड दिए, दो वर्ड में आपको क्या कर सकता है, आपको ये दो वर्ड को एकदम बहुत ज्यादा पूरा एलोबरेट करके दे रहा है कि एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर्स क्या हैं इसके। ठीक है, और इन समरी में भी आपको बहुत इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम, सोशल्स, यानी यू कैन टीच द अपनी जो स्टूडेंट्स को आप बहुत आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये हैंड्स आउट एजुकेशनल हैंड्स आउट क्रिएट करके दे सकते हैं, ताकि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आप बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ सीख जाए। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज द परचेज ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, more and more consumers are choosing or to buy organic food due to its perceived health benefits and environmental sustainability. This is the example of how individual preference can be influence consumer behavior. Another example is the purchase of the luxury goods. Consumers are often drawn the luxury goods because of the perceived status and quality. This is an example of how culture, values and social norms influence the consumer behavior. तो आप इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया, और उसके बारे में दियर आर सम कॉमन एग्जांपल, तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको क्रिएट करके दे दिया। परचेज ऑफ द ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू द परसीव हेल्थ एंड, जो पूरा जो है ना परचेज लग्जरी, बहुत ज्यादा शॉर्ट में पॉइंट में आपको उन्होंने 4 पॉइंट आपको क्रिएट करके दे दिए। इफेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द बिजनेस एंड मार्केटिंग, देखिए पूरा दे दिया कि क्या इफेक्ट है ना, पूरा आपको बता दिया। बताने के बाद आपको ये 4 पॉइंट्स आपको क्रिएट करके दे दिए। क्रिएटिंग न्यू प्रमोशन अट्रैक्टिव, एडजस्टिंग सॉल्यूशन फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा पूरा आपको डिटेल दे दिया। यू कैन गो दिस, और ये यहाँ पर आपको यू कैन थिंक एनी अदर पोटेंशियल सॉल्यूशन, और वहां पर आपको कंक्लूजन बता दिया कि क्या क्या हमारा कंक्लूजन है। कंज्यूमर बिहेवियर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर that the businesses need to consider in order to remain competitive. It is the study of how individuals, groups, and organizations make decision about the purchase, use, and disposal of the goods and services. It is influenced by the variety of the factors such as the individual preferences, culture, values, social norm, and economic conditions. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको देखिए आपको क्या कर दिया, पूरा एक समराइज कर दिया, यानी जितने भी पॉइंट आपने किए थे उसने आपको क्या किया, एक समराइज कर दिया। और लास्ट में दे दिया बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड अडॉप्टिंग देयर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बिजनेसेस कैन रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड बेटर मीट कंज्यूमर नीड टू प्रेफरेंस, है ना। उसके बाद फिर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिए कि यू कैन
आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट्स का क्या रुख क्या है, ठीक है, किस तरह से वहां पर कंज्यूमर्स है, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप अपने प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो एक तरह से एक ये हैंड आउट क्रिएट करके देती है, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या है, ये एजुकेशनल हैंड्स आउट है ना। इसमें क्या होगा, बहुत शॉर्ट में ना आपको यू कैन अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट, है ना। आप उसमें सब कुछ समझ सकते हैं ना, देखिए पूरा समझ सकते हैं कि क्या है, उन्होंने पूरे ये इस चीज को डिस्क्राइब किया। व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर ऑन बिजनेस एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर एंड, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ये हैंड आउट की हाईलाइट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एजुकेशन हैंड आउट है, यानी को पायलट जो एआई टूल्स है वो आपके एजुकेशन हैंड आउट्स को बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में क्रिएट करके दे सकता है। द नेक्स्ट वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में वहां पर शुरू में जो बताया था वही है, वैसे भी आप कोई भी इसमें फॉर एग्जांपल आप टॉपिक जो भी देंगे प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने वहां पर किया था, और आप यू कैन ऑटोमेटिकली, है ना, यू कैन ऑटोमेटिकली, तो आप ये है, तो इसमें कोई बहुत चीज़ें 15 स्लाइड्स हो जाएंगी, जनरेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के बारे में और आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इसके बाद, वही है, ठीक, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर। तो अब क्या है कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, देखिए कुछ नहीं, बस इसमें बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, हर किसी में जाके आपको बस एक टॉपिक डालना, टॉपिक डालने के बाद में आपको किस क्लास के लिए चाहिए वो चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर द ग्रेड या क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया। अब क्या है, आप पीएचडी के बारे में कर दें कि पीएचडी में कंज्यूमर बिहेवियर का जो पीएचडी में क्या है, या फिर आप यहाँ पर कर दे रोल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस कर दिया, तो इसका कर दिया, जनरेट किया था, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में कंटेक्स्ट को बिल्ड कर देगा ये, है ना, बहुत ही कंटेक्स्ट को बिल्ड कर देगा बहुत ही इजीली तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप इसमें या तो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, वर्ड में, या फिर आपको यहाँ पर कुछ टूल्स दे रखे हैं, उस टूल से आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। यानी इसी में ही, अब अगर आप चाहे तो, अगर आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, इसको डाउनलोड नहीं करना चाह रहे, तो यू कैन एडिट इन दिस बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स में भी आप बहुत अच्छे से इजीली से भी इसको एडिट करते, देखिए ये सारी चीजें दे रखी है, फ्रंट साइज दे रखा है, ठीक है, बोल्ड दे रखा है, अंडरलाइन दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए पूरा ये दे, कॉन्टेक्स्ट क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक, परसीव वैल्यू, ब्रांड लॉयल, परसेप्शंस, मोटिवेशन, एडॉप्शंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ, एटीट्यूड, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूरा दे रखा है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में भी दे रखा है। साइकोग्राफिक, डिफाइन द साइकोग्राफिक इज द स्टडी हाउ टू साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। साइकोग्राफिक कैन बी यूज अंडरस्टैंडिंग वाई कस्टमर मेक द परचेज डिसीजन एंड हाउ इट इज, पूरा दे रखा है, ठीक है। तो यू कैन, ठीक है, वैल्यू क्या, परसीव्ड वैल्यू क्या, डिफाइन द परसीव वैल्यू द टोटल वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, पूरा देर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट असेसमेंट, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी, डिफाइन द ब्रांड लॉयल्टी इज द टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर टू द कंटिन्यू परचेज एंड ब्रांड द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। परसेप्शंस क्या है डिफाइन ऑफ द परसेप्शंस, परसेप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। मोटिवेशन, मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डर है इसको आप क्लास में पढ़ाने के साथ साथ यू कैन यूज दिस टेक्स्ट टू यूज योर क्रिएट योर प्रेजेंटेशन आल्सो, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कंटेक्स्ट बिल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडॉप्ट प्रोसेस क्या है, ये एडॉप्शन प्रोसेस, डिफाइन द एडॉप्शन प्रोसेस से पूरा बता दिया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है ना, define the product life cycle is the stage of the development that the product service goes through the from the conception of the decline,
ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? डिफाइन डेफिनेशंस क्या है? एटीट्यूड इज द इंडिविजुअल कॉग्निटिव एंड इमोशनल रेस्पॉन्स द पर्सन ऑब्जेक्ट सिचुएशन। तो क्या किया उन्होंने? पूरा एकदम डिफिनेशन भी दिया, यानी उसके साथ साथ आपको डिफाइन भी किया है कि एग्जैक्टली एटीट्यूड क्या है। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एडॉप्शन प्रोसेस क्या है ना? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू टेक एक्शंस एंड स्ट्राइव अचीव देयर गोल। तो ये सारी चीजों को क्या किया है उसने? सारी चीजों को, है ना, एक डिफाइन भी किया है और पूरा एक दो पॉइंट्स में डिटेल में भी आपको दे दिया है। ठीक है, एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है? कॉन्टेक्स्ट बिल्डर है कि किसी भी चीज को लेकर आप एक एक कॉन्टेक्स्ट क्या कर सकते हैं? आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और करने के बाद देखिए मैंने ये कहा कि आप यहाँ से ना इसको यू कैन यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है ना, इसको भी आप चाहे तो बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, इसको चाहे इटालिक कर सकते हैं। ठीक है। किसी तरह से आप इसको भी, इसको यहाँ पर आप नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ नंबरिंग दे सकते हैं, इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये ठीक है, वेट कर रहा है ये थोड़ा सा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, ठीक है, क्रिएट करने में, बनाने में, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा इसी तरीके से वी कैन यूज, वी कैन डाउनलोड दिस ऑन वर्ड और पीडीएफ, यू नो, और हम इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ना, थोड़ा हैंग हो गया है ये पेज। तो इस तरह से हम कोपायलट का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स है। तो हम एक वन बाय वन फीचर्स हम बताएंगे आपको, टाइम भी बहुत कम है। ठीक है। तो बहुत टाइम ले रहा है ये। दूसरा पेज खोल लेते हैं हम, छोड़िए। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए इसके बारे में। कॉन्टेक्स्ट ये हैंग कर गया एक्चुअली ना, थोड़ा हैंग कर गया। ठीक है, तो दूसरा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। उनको सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है इसमें। तो ठीक है, तो अब हमने क्या कॉन्टेक्स्ट बिल्डर के बारे में जान लिया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पीछे हम लोग जाते हैं और पीछे हम देखते हैं कि द नेक्स्ट वन इज, कि कौन सा है नेक्स्ट वन, उसके बारे में डिस्कस। पावर पॉइंट जनरेटर, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, आइडिया जनरेटर।
ठीक है, जनरेट ए लिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ लेसन प्रोजेक्ट ऑन एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक, दिस टूल इज ग्रेट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज लेसन आइडिया। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ठीक है, इसमें भी वही है, क्या करना है कि किसी के बारे में आपको लेसन जनरेट द आइडिया, आइडिया किसके बारे में, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भी मुझे किसके बारे में चाहिए, कौन सा था, फॉर एग्जांपल एनी टॉपिक इज हियर, रिमेनिंग टॉपिक इज हियर, कोई और टॉपिक है प्लीज दीजिए, इंटरव्यू वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अब अच्छा हम लोग लेते हैं ना वेस्ट मैनेज, हम लोग हमने वेस्ट मैनेजमेंट डाला और जो भी हमने कहा कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्रिएट आइडिया, तो जनरेट आइडिया, तो आइडिया क्या करता है, क्रिएट करता है, कि लेवल क्या है, ये क्या है, PhD लेवल का ना, PhD लेवल, तो ये क्या कर देगा हमारा, जनरेट कर देगा आइडिया, क्या कर देगा, PhD लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारे आइडियाज को जनरेट कर देगा ये, कि कैसे हमें यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, क्या क्या, क्विकली जनरेट द क्विकली। ठीक है, देखिए ये इतने इतनी चीज दे दिए, हमें क्या कर दिया, आइडिया जनरेट किया है, मतलब जनरेट डेवलप डेवलप ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर द होम स्कूल और वर्क प्लेस, इम्प्लीमेंट द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ट्रैक रिजल्ट, राइट ए रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग प्रेजेंट, ये ठीक है, क्रिएट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, डेवलप द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, गिव द लेक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, राइट इन आर्टिकल ऑफ द ब्लॉग ऑफ द पेस्ट मैनेजमेंट, जो भी चीजें आप इसके बारे में आप यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसने आपको एडवोकेट द इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी आपने कोई एक टॉपिक यहाँ पर डाला, लेकिन आपको क्या हुआ, 10 आइडियाज को जनरेट कर दिया उसने, ठीक है ना, तो 10 आइडियाज को जनरेट करता है, तो ये क्या करता है, आइडिया जनरेट भी करता है ना, आपके पास कोई एक चीज है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन ये आप डाल सकते हैं यहाँ पर ना, ठीक है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने आइडियाज को क्रिएट करके देते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वन वन इज मोर क्वेश्चन सीजर, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ना, श्रेषा मेहता ने दिया, चलिए हम इस पर करते हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या किया, किसके लेवल पर, PhD लेवल पर हमने इसको जनरेट कर दिया, देखिए ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर क्या आइडिया है, ये देखो, develop business model for the new venture, develop a marketing plan for the new product services, develop a financial plan for the new ventures, develop the human resource plan for the new venture, develop a promotional productions operations, यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर पूरा 10 आइडियाज को हमें क्रिएट करके दे दिया, यू कैन यूज दिस आइडिया फॉर क्रिएटिंग योर जनरेटिंग योर आइडिया, यू कैन यूज, बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स है उस पर आपको ये आइडियाज क्रिएट करके दे सकता है, आप इन चीज पर आइडियाज पर इन टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि नहीं, डेवलप ए बिजनेस प्लान फॉर न्यू वेंचर, तो हमने कहा कि नहीं हमें इस पे चाहिए डेवलप ए बिजनेस प्लान इन न्यू वेंचर, तो आपने यहाँ से एक ले लिया और यू कैन ये भी खत्म हो गया, ठीक है, तो ठीक है, तो अब हमने इसमें ले लिया, इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज यार अनदर वन, वी कैन, ठीक है, अभी हमने उसमें फिर से खत्म हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर दूसरा से करना है, नॉट इन साइन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, अब हमें इसको, ठीक है, तो ये सारे वो जो ना मैं बताया ना आपको, ये पूरा खत्म हो गया, तो अभी फ्री वाला जो वर्जन खत्म हो गया है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपको फ्री वाला वर्जन खत्म होता है, यू कैन यूज हियर को पायलट,
ठीक है ना। लॉगिन लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन से, अभी हमने एक से किया था, हम दूसरे से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस खत्म हो गया, ये लॉग आउट कहाँ से हो गया? तो अब हम इसको, हमने क्या किया, दूसरे पे हम लोग आ गए, आने के बाद फिर यहाँ पर हमने हमने 1 मिनट 10 मिनट को पायलट। ठीक है, अब हमने एजुकेशन को पायलट किया। जस्ट मिनट, वी एक्चुअली वी आर लॉगिंग द अदर अकाउंट ना, तो जस्ट वेट। जस्ट वेट, वी आर यूजिंग द another one is, तो ठीक है, हम लोग जो यूज कर रहे थे, वी आर यूजिंग यार, वो एक्चुअली क्या है ना, जब अगर आपका जो फ्री का जो खत्म हो जाएगा तो यू कैन नॉट एक्सेस, है ना। तो अब हमें फिर से एक्सेस कर, तो हम लोग कर रहे थे आइडिया जनरेटर, एआई फ्री स्टाइल, रियल वर्ल्ड बेनिफिट। रियल वर्ल्ड बेनिफिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ना। इसमें भी कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो आपको, फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ये फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग हियर द अगेन द एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग क्या है, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वी कैन क्रिएट हियर। ठीक है, तो कैसे क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर जनरेट किया, जनरेट करने के बाद क्या हो गया, ये
पूरा हमारा जो रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स है ना, क्या रियली एग्जैक्टली कि होता क्या है, हमें स्टूडेंट को बताना है कि इसका रियल वर्ल्ड बेनिफिट ऑफ द वन बेनिफिट टू, यानी ये जो रियल वर्ल्ड बेनिफिट है वो सारी चीजें 5 बेनिफिट्स आ रही है कि कितने कितने है ना। लर्निंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर, क्या सीखेंगे आप, क्या जानेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा, जिस जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है मार्केट में या नहीं है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल वर्ल्ड बेनिफिट हो गया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट जनरेटर, कोई प्रोजेक्ट के बारे में जनरेट करना है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें किसी के बारे में, फॉर एग्जांपल इसके लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में, और इसमें भी कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में करेंगे तो हम क्या होगा, ये क्या होगा, जनरेट। तो ये पूरा क्या कर देगा, प्रोजेक्ट का आपको जनरेट कर देगा। ठीक है ना, क्या क्या पूरा प्रोजेक्ट आपको जनरेट करके दे देगा कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट आउटलाइन क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, मटेरियल नीडेड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारा आपको प्रोजेक्ट के बारे में जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अनदर वन इज राइटिंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी लिख देता है कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट ए प्रॉम्प्ट अबाउट दिस, तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको बता देगा डू यू बिलीव जू एंड शुड बी एग्जिस्ट। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस दे देगा लिख करके, आप इससे प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, मतलब यू कैन यूज प्रॉम्प्ट। किस तरह से क्या कर देगा देखिएगा आप, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यू कैन यूज। देखिए ये पूरा आपको प्रॉम्प्ट, ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, ये पूरा आपको 10-15 प्रॉम्प्ट, व्हाट इज द सेम कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको लिख के देता। यू कैन सर्च दिस फ्रॉम द एनी, मतलब कोई भी आपके एआई टूल से आप इसको सर्च कर सकते हैं ना, ये आपको पूरा आ जाएगा। अनदर वन इज स्टूडेंट रिपोर्ट्स, कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट की रिपोर्ट बना रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने बताया, स्टूडेंट का नाम बताया आपने मुकेश कुमार। ठीक है, एरिया वेयर स्टूडेंट एक्सेल शो द पोटेंशियल के, क्या किसमें पोटेंशियल, किसमें, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में वो गुड कर रहा है। एरिया वेयर द इम्प्रूवमेंट, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद कुछ नहीं है, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी पेपर है। लेवल कौन सा है, किस किस लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट रिपोर्ट्स, जैसे बहुत रिपोर्ट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये आपको जनरेट करके दे देगा हाल के रिपोर्ट, यानी ये वाला जो टूल्स है वो आपको बहुत इजीली तरीके से, है ना, देखिए रिपोर्ट उसने बना दिया। मुकेश कुमार इज द एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हु excels in the math. He has deep understanding of the complex math concept and apply to the problem solving during the post graduation. Mukesh Kumar has also shown in the stand in the area such as the logic analysis quality methods. However, it is grade does not reflect how well he done in history. I would recommend the Mukesh Kumar does more regarding a historical topics and find ways to connect it is the present day. It will be it will be help in the build this analytical skills and gain a better ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट। एडिशनली रेगुलर प्रैक्टिस, जो पूरा ना रिपोर्ट एक क्रिएट करके दे दिया आपको ना, जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में एक क्या हो गया, मुकेश के बारे में रिपोर्ट क्रिएट करके दे दी। तो यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट इज वेरी इजीली एंड वेरी इजी वे। और द नेक्स्ट वन इज आप एक अपने पेरेंट्स को कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि क्या नाम है, कि जुनेद। ठीक है, इस सेकंड फीडबैक ऑफ एड्रेस क्या है, ही गुड वेनेवर, जो भी आपके पास पेपर है, जो जो पेपर के बारे में आप, ठीक है, हिस्ट्री, दिस फीडबैक एड्रेस। थर्ड फीडबैक यानी क्या है,
फर्स्ट फीडबैक यानी जो नाम भी जैसे कि जो भी आप मैथ जो भी पेपर है जो भी आपके बारे में ठीक है। और थर्ड फीडबैक क्या है, आइडिया जो भी आप लिखना चाहते थे। वो भी मतलब आप लिखना चाहते हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को ईमेल लिखना चाहते हैं, आपने अपने फीडबैक डाल दिए और जनरेट क्या कर दिया, ये इसमें एड्रेसेस क्या है, फीडबैक टू एड्रेसेस एड्रेसेस क्या है, तो जनरेट जब आपने कर दिया तो ये क्रिएट कर देगा एक फीडबैक। ठीक है ना। क्या क्या कर देगा, देखिए ये पेरेंट्स के लिए ये कर देगा जो क्या क्या, डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, तो उसने पूरा लिख दिया कि आई हैव ऑब्जर्व दैट योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन मैथ, योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, एडिशनली I wanted to let you know आप वो पूरा है ना, on the positive notes I have observed that the are good in history class, this is the पूरा आपको सिंसियर टीचर्स ने थैंक यू फॉर देना पूरा आपको ना, यानी आपने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं उन पॉइंट्स को एनालाइज करके ये आपको क्या कर देगा, ये आपको एनालाइज करके आपको एक एक टीचर्स के आपको, और यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स को, टीचर्स के पेरेंट्स को इंडिविजुअली यू कैन सेंड टू इट। ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द 1 2 3 4 5 यानी यानी 13 फीचर्स था जो को पायलट था, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगा आई थिंक, सब लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हम जो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर वन इज, हम जो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ठीक है। अब हमने ये कोपायलट के बारे में डिस्कस कर लिया, और हम आज बैपिक के बारे में यहाँ यूज करते हैं। बैपिक क्या है एक्चुअली, बैपिक जो है ना, बैपिक एआई जो है एक तरह से एक टूल्स है जो किस चीज का, बैपिक इज द वेबसाइट दैट ऑफर द वैरायटी ऑफ द डिजाइन रिसोर्स टू हेल्प यूजर क्रिएट देयर ऑन यूनिक डिजाइन। यानी कि जो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रेजेंटेशंस के जरिए अगर आप समझाना की कोशिश करते हैं चाहते हैं, तो बेपिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द दोज आर यूजिंग द पीपीटी। जैसे जैसे हमने वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की बात की थी, हम यहाँ पर बेपिक एआई की बात करेंगे। दीज रिसोर्स इंक्लूड द टेम्पलेट्स, ग्राफिक, इलस्ट्रेशंस, फोटोज एंड मोर। द वेबसाइट हैज a user friendly interface that allow user to easily browse and search for the resources they need. Bepic also offer a subscription services that give user access to even more resources and features, such as ability to customize template and download design without the watermark. Overall, ठीक है, ओवरऑल बेपिक इज द ग्रेट रिसोर्स फॉर द एनीवन लुकिंग टू द क्रिएट हाई क्वालिटी डिजाइन क्विकली एंड इजी। ठीक है। तो अब ये क्या गया, बेपिक क्या करता है, बेपिक करता है कि प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करता है एआई टूल्स की मदद से। यू कैन राइट डाउन द प्रेजेंटेशन ईच एंड एवरी टॉपिक विद इन ए सेकंड। तो कैसे करता है, बस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइम इज ओवर आई थिंक। तो ठीक है, हमने सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस एक आएगा खुलकर, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमेशा की तरह यू शुड गो टू गो योर प्रेजेंटेशन मेकर। ठीक है, तो हमने प्रेजेंटेशन मेकर पे गेट स्टार्ट किया। गेट स्टार्ट के बाद में ना, अब यहाँ पर जो भी हम लोग चाहेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप पर क्या क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पर हमें चाहिए, हमें क्या है, हमें जैसे देखिए देखिए ये पूरा यहाँ पर हमें, ये हमें क्या दिया रखा है ना, ये हमें पूरा स्पेसिफाइड टोन ऑटो। अब स्लाइड कितना चाहिए आपको, 8 चाहिए, 7 चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल 10 स्लाइड, 10 स्लाइड हम लेते हैं, सिंपल ब्लैक, मैट्रिक इवनिंग, इसकी जो भी आपको, फॉर एग्जाम्पल हमें हमें ये चाहिए, ये वाला है ना ज्योमेट्रिक वाले, हमें इसमें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना।
तो ज्योमेट्री वाले में हम करते हैं तो क्या होगा, जनरेट प्रेजेंटेशन। ठीक है, जनरेट प्रेजेंटेशन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो अब ये कहेगा कि भाई जनरेट प्रेजेंटेशन कर, लेकिन अब आप इसे लॉगिन तो कीजिए। तो आपको लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन किया हमारे जीमेल अकाउंट से। ठीक है ना, आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है ना, और आप लॉगिन किसी से भी कर सकते हैं। तो ये क्या, आपको ना देखिए पूरा ना आपको ये जनरेट कर देगा, यानी पूरी स्लाइड के जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे एक प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है, तो ये प्रेजेंटेशन क्या कर देगा, आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे देगा विद इन 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, आपको बहुत उससे भी कम टाइम में। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो क्रिएट कर रहा है प्रेजेंटेशन को। तो ये आपको प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने से, हमने वो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस की स्लाइड जो आपने देखी थी बहुत सिंपल सी थी, है ना, उसमें सिर्फ मैटर था। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको विथ पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस एंड वेल फोटोज एंड गुड फॉन्ट्स, जब आपको लेआउट का सारा कुछ क्रिएट करके दे देगा। यानी 1 मिनट में आप किसी भी टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं व्हेनेवर यू नीड टू प्रेजेंट योर टॉपिक इन द क्लासरूम। और जहां भी आपको क्लासरूम ही नहीं, जहां भी आपको अपने टॉपिक के बारे में प्रेजेंट करना है, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, क्लास में प्रेजेंट करना है, प्रिंसिपल के सामने प्रेजेंट करना है, वाइस चांसलर के सामने प्रेजेंट करना है, यू कैन यूज द दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट AI टूल्स फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशंस। देखिए, हमने जो 10 स्लाइड्स के बारे में यहाँ पर डाला था, और वहाँ मतलब उस हमने एंटर किया था, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया है, 10 स्लाइड क्रिएट होके आ गई है। देखिए, हमने जो डाला था ना, क्या था लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉम द आइडिया टू सक्सेस, नेविगेटिंग द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये ना हमने ये 2 वर्ड डाले, लेकिन इसने AI की मदद से इसने क्या कर दिया, हमारे उसको थोड़ा क्रिएट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, एलोबरेट कर दिया, और अच्छा हमें 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 और अच्छा कर दिया। ठीक, ठीक है। तो अब ये, तो अब हमें क्या है, देखिए हमने जो प्रेजेंट आप जो क्रिएट किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, यू कैन कैन देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन का आ रहा है ना, यहाँ पर आकर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करने के अलावा हम यहाँ पर इसको हम किसी चीज़ों में डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, इसमें देखिए आप PNG में डाउनलोड कर सकते हो, और PDF और JPG में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब आप पावर पॉइंट में डाउनलोड करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल हमें इसे प्रेजेंट, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट करने के उसको आ गया, तो यू कैन प्रेजेंट दिस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट स्लाइड फ्रॉम द आइडिया टू सक्सेस, नेविगेटिंग द जर्नी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, देखिए इस तरह से फोटोग्राफ भी आपको दे दिए, अच्छा सा आइडिया भी दे दिया, क्रिएट कर दिया स्लाइड्स के लिए। इंट्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ठीक है ना, पूरा देखिए क्रिएटिव पैशन, रिप्रेजर्वेशन सक्सेस, देखिए बहुत ज्यादा, और आइडिया और टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको कुछ बता दिया। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया कि एग्जैक्टली यू कैन हाईलाइट इट हियर, द एंटरप्रेन्योरशिप इज द जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज रिगार्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रिएटिविटी पैशन एंड furthermore to the success. These presentations will provide the insight how to navigate the journey from the idea to success. ठीक है, देखिए developing your idea, your successful entrepreneurship will start with the idea, what not to do। ये पूरा डिस्कस मतलब बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव एक स्लाइड्स क्रिएट करके देते हैं। ठीक है ना, क्रिएटिंग बिजनेस प्लान, ठीक है, यानी फाइंडिंग योर वेंचर, बिल्डिंग योर टीम। ठीक है, नो एंटरप्रेन्योर कैन सक्सीड alone, build a team to talented and committed individuals who share your vision can help you achieve your goal। ठीक है, उस तरह से पूरा मार्केटिंग योर प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, मतलब जो भी whenever you have any topic you can write down here and you create a slide scaling your business। भाई हाल के हाल आप अपने कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, कंक्लूजन, यानी 10 स्लाइड्स को उसने क्रिएट करके दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इज द चैलेंज रिगार्डिंग डेडिकेशन प्रेसिजन, ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। थैंक यू, यू हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्रिएट करके ग्राफिक AI तुरंत दे देगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, और अगर आपको लग रहा है कि स्लाइड्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन एडिट इट। ठीक है, यू कैन एडिट, कि यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस,
ठीक है ना, यहाँ एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ से टेम्पलेट्स भी आप दूसरे यूज कर सकते हैं, वीडियोस का यूज कर सकते हैं, है अपलोड वीडियोस भी कर सकते हैं एआई पर से कुछ, ठीक है, आपने टूल्स यूज कर, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रैपिड एआई है। रैपिड एआई आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से यू कैन क्रिएट क्रिएट, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन इफेक्ट, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बारे में बस 5 मिनट में मैं आपको एक हम लोगों ने जो शुरू में डिस्कस किया था कि वी आर यूजिंग द गूगल वार्ड। गूगल वार्ड क्या है? गूगल वार्ड, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द गूगल वार्ड? कितने लोग हैं जो गूगल वार्ड के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द गूगल वार्ड? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द गूगल वार्ड? गूगल बार्ड बेसिकली एक गूगल की सर्विस है जो चैट जीपीटी की तरह यूज होता है, तो आप इसको भी यू कैन यूज दिस टूल्स आल्सो फॉर क्रिएटिंग योर लेसन प्लान, है ना, क्रिएट योर आइडिया जनरेशन। आप जो भी चीज आपने उस को पायलट में मतलब सीख ली है, यू कैन यूज इन वर्ड। तो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द दिस गूगल वर्ड? जरा राइट द चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट गूगल वर्ड। उसी हिसाब से फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज डिस्कस करना चाहिए। यस, राइट राइट राइट, यार है ना गूगल चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द गूगल वर्ड? गूगल वर्ड कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने सुना है? बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द गूगल वर्ड? आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ओके, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो जस्ट राइट हियर कि हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द गूगल वर्ड? गूगल वर्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने सुना है ना? कौन कौन है इसमें थोड़ा सा ये पता चला। आई डोंट नो, अनिल कुमार चौधरी, आई डोंट नो। ओके अनिल जी, एंड अनदर वर्ड? आई डोंट नो सर। ओके ओके, एंड अनदर वर्ड इज, देखिए, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो गूगल वर्ड है बेसिकली एक गूगल की सर्विसेज है, एआई टूल्स है जो गूगल ने लॉन्च किया है। एआई टूल्स ये क्या क्या करता है? इट इज क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग इट इज रिक्वायर्ड बाय यू। जो भी आपको जरूरत है, जिसकी भी जरूरत है, आपके दिमाग में जो भी चीज है, यू यू कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट लेसन, जैसे उसमें अगर हमने लेसन प्लान था तो ऑलरेडी टेम्पलेट था, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, ठीक है, हम यहाँ पर यू शुड राइट ए प्रॉम्प्ट इधर, लेसन प्लान किसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में कोई लेसन प्लान क्रिएट करना। तो देखिए, अगर क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्लास, ठीक है, या फिर टू क्लास, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें ये डाल दिया, तो अब हमने जहाँ पर, वहां पर क्या था, हमें एक टेम्पलेट बना हुआ मिला था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टू द क्लास पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो हम यहाँ पर जब ये करते हैं तो ये क्रिएट कर देता है एआई टूल्स की मदद से। जो चैटबॉट है जो जनरेट कर देता है, गूगल बार्ड एक्चुअली गूगल का एक एआई टूल्स है जो क्रिएट कर देता है आपका जो भी आपने इंटायर जो भी, इफ यू हैव इन माइंड, तो ये क्या लेसन प्लान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, क्लास लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अब इसमें इन्होंने देखो, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द एंटरप्रेन्योरशिप मटेरियल, क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या, इंट्रोडक्शन 10 मिनट, बिगिन बाय द आस्किंग स्टूडेंट डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस प्लान 30 मिनट। यानी आपको इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर भी बता दिया है और टाइम भी दे दिया है कि इंट्रोडक्शन आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है,
ठीक है, डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान 30 मिनट में डेवलप क्रिएट करना है। रिस्क ऑफ चैलेंजर एंटरप्रेन्योर 20 मिनट्स में करना है। कंक्लूजन 10 मिनट्स। तो यानी कि कुल मिला के आपको यानी कि क्या कर दिया, 10, 40, 40 to 100, 40 to 60, 60 to 10, यानी 80 मिनट्स। यानी 80 मिनट्स में आपको एक पूरा लेसन जो आपने बता दिया, और देखिए बता भी दिया आपने। Student will they assess their ability to develop the business identity as this can be done through the written assignment or presentation, extensive activities, hard students have the interview successfully, ठीक है। तो जो भी आप चाहेंगे, जो भी मतलब if you want to know about each and everything, तो you can find out tips and teaching of the entrepreneurship, उसके बारे में आपने entrepreneurship के टीचिंग के बारे में आपने, ठीक है। मेक द लर्निंग प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज, ये डोंट अफेयर द स्टूडेंट फेलियर इज द नेचुरल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, ठीक है। पोस्ट, ये सारी चीजें आप क्रिएट रिफॉल्स आपको इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, कि आपने ये कहा कि मुझे क्रिएट use for the entrepreneurial development for the class plan with, ठीक है। तो आप क्यूज आपको क्रिएट करना है, क्यूज आपको क्रिएट करना है, तो आप क्या करेगा, तो आपको क्या क्रिएट क्यूज, आप क्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूज क्रिएट कर देगा, मतलब ये आपको जो अभी हमने को पायलट में जो पढ़ा था उससे अच्छी ज्यादा वर्डिक्स में ना आपको क्रिएट करके देते हैं, उससे ज्यादा मैटर, उससे ज्यादा सिस्टम के बारे में आपको क्रिएट करके देते हैं, कि पूरा कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये हम इसको जो ना, इसमें सबसे खास चीज है जैसे कि आपने पहले तो एक पढ़ा, ठीक है ना, एक किया, ठीक है। आपको कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है, शॉर्ट आंसर दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो व्यू और अदर ड्राफ्ट में जाइए, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी A1 2 3, ड्राफ्ट 1 2, तो आप यू कैन यूज दिस वन, ठीक है ना, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। तो आप ये आप कोई भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये यहाँ पर किस में चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको वर्ड में चाहिए, तो आप ये ना एक्सपोर्ट टू डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा, ये आपके पास जो भी आपके गूगल ड्राइव में, ये ऑटोमेटिकली किस में सेव हो जाएगा, ये आपके पास जो गूगल डॉक है उसमें आराम से सेव हो जाती है, ये सेव हो जाती है डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग। तो ये क्या ओपन डॉक्यूमेंट, तो ये जो भी जिस तरह से आपने क्या था, यू कैन है ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट में सेव भी उसी तरह से जिस तरह से वहां पर, तो इस तरह से हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ठीक है, यहाँ पर हमें राइट है क्या, फॉर एग्जांपल किसके लिए ना, हम लोग थे उसके बारे में, फॉर एग्जांपल हम लोग एक और जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, वेस्ट मैनेजमेंट था, वेस्ट मैनेजमेंट कंज्यूमर बिहेवियर, अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट का देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा कुछ भी जो हमारे टीचिंग एक्टिविटीज है उसके बारे में, तो हमने हमें फॉर एग्जांपल हमें अपने स्टूडेंट्स को वेस्ट मैनेजमेंट को एज ए टेलिंग, तो हमें क्या लगता है, राइट स्टोरी के संदर्भ में टेलिंग, ठीक है, राइट एंड टेलिंग स्टोरी टू वेस्ट मैनेजमेंट और PhD ठीक है। अब आपने क्या क्या कि भाई एक टेलिंग स्टोरी तो बेस्ट मैनेजमेंट पर आप क्रिएट कीजिए, जिससे कि हम वी कैन टेल टेल आवर जो स्टूडेंट्स को हम किस तरह से बता सकते हैं बहुत इफेक्टिव। तो राइट टेलिंग स्टोरी ऑफ टेलिंग स्टोरी अबाउट बेस्ट मैनेजमेंट, तो क्या कर देगा ये,
ये आपको एक एक स्टोरी की शक्ल में आपको पूरा फॉर्मेट क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि आप अपने स्टूडेंट्स को है ना कर सकते हैं। स्टोरी के अलावा यू कैन राइट डाउन द अदर थिंग इज, है देखिए। अब ये क्या क्या कर दिया, ये उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है, हियर द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कर दिया, एक स्टोरी क्रिएट करके दे दी। Once upon a time, there was a PhD student named Alice who was studying the West management. She was passionate about the finding way to reduce the environment impact of the West, and she was determined to make a difference. One day, Alice was reading a research paper about the new technology for converting food waste into the bioenergy. She was excited about the potential of the technology to help reduce the amount of the food waste of the boys in landfills. Allies decided to investigate this technology further. She contacted to the author of the research paper and arranged the visit their labs. During her visit, she learned more about the technology and how it is worked. She also met in the other scientists who were working on the same. ठीक। तो ये क्या कर दिया आपको पूरा, देखिए ये रिव्यू ड्राफ्ट में तीन आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब ये क्या है, देयर एज अ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, द पीएचडी स्टूडेंट्स हैव टू पावर टू मेक द रियल डिफरेंस इन द वर्ल्ड, हार्ड वर्क, dedications and innovations of the essential for the success. Ever the smallest problem can be solved with the right approach. Don't be the afraid to challenge the status quo. Be passionate about your work and never give up for your dreams. ठीक है, तो ये क्या है, स्टोरी का मोरल है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया कि ये क्या क्या कर दिया, हमने ये क्रिएट कर दी एक स्टोरी कि किस तरह से हम लोग एक स्टोरी को क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हमें हमें इसको राइट, या हमें क्या कर देंगे, क्रिएट गेम, और ये क्या, अब हमें इसमें हमें क्या करना है कि गेम की शक्ल में इसको हमें क्रिएट करना है फॉर द स्टूडेंट, किसके लिए, पीजी स्टूडेंट, ठीक है, पीजी स्टूडेंट, पीजी लेवल, पीजी लेवल स्टूडेंट्स। तो क्या करता है ये, फिर हम क्या कर देगा, पीजी लेवल स्टूडेंट्स को क्या कर देगा, ये आपको एक क्रिएट करके दे देगा गेम, कि किस तरह से हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे एक गेम क्रिएट करें जिससे लोगों में अवेयरनेस हो, या लोग समझे, या हमारी स्टडी के काम पे हो। देखिए अब क्या दे दिया, here is the game of the waste management PG level student, game name waste management challenges, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एज ये पूरा मटेरियल क्या है, वैरायटी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, ये सब इंस्ट्रक्शंस क्या है, डिवाइड स्टूडेंट या 2-3 प्लेयर्स की। तो पूरा इंस्ट्रक्शन देकर कहा कि आप किस तरह के कैसे यू कैन डिवाइडेड स्टूडेंट, ये वेरिएशंस क्या है, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टिप्स क्या है, टू मेक द गेम मोर एंड एंगेजिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव द टीम कम्पीटिंग, यू कैन ऑल्सो यूज द गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी, टीच द स्टूडेंट अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ द वेस्ट। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर दिया, ये हमें सारी चीजें बता दिया, ठीक ठीक है। अब आप कह रहे हो कि नहीं यार, हमें ये जो हमने जो क्रिएट किया है ना, हमने एक गैप क्रिएट किया है, तो अब आप चाह रहे हो कि स्कूल लेवल पर कि हम टीचर्स, हम जो स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे बेस्ट मैनेजमेंट का, और उस पर डिबेट क्रिएट कराए। तो यू कैन किस तरह से ऑर्गेनाइज कराना है, क्या कराना है, तो यू कैन राइट हियर द क्रिएट, राइट डिबेट, डिबेट ऑन बेस्ट मैनेजमेंट में डिबेट करा, ठीक है। अब बेस्ट मैनेजमेंट का क्या करना है, राइट डिबेट ऑन द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द पीजी स्टूडेंट। अब पीजी स्टूडेंट बेस्ट मैनेजमेंट तो हर चीज में आता है, चाहे साइंस में, सोशल साइंस में, है ना, साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, और क्या है, आर्ट्स में। तो क्या कर सकते हैं, यू राइट दे डिबेट टू द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द पीजी स्टूडेंट, फॉर फॉर सोशल साइंसेस पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें सोशल साइंस के एस्पेक्ट से इसको करना है,
तो क्या करते हैं, यू कैन क्रिएट हियर। ठीक है, तो आप क्या होगा, जो सोशल साइंस के एस्पेक्ट से ये आपको एक पीजी लेवल पर ये क्रिएट करके दे देगा। ये क्या हुआ, ये आपको क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये क्या क्रिएट करके दे दिया कि आपको ये क्रिएट करेगा डिबेट टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट, शुड द गवर्नमेंट बी द मोर इन्वॉल्व। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में दे दिया। ठीक है, अफर्मेटिव क्या है, द गवर्नमेंट शुड बी मोर, पूरा मतलब दे दिया, द गवर्नमेंट कैन प्ले द रोल इन द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और निगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है, इसका निगेटिव पॉइंट्स क्या है ना, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, एडिशनल कंसिडरेशन क्या है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हमें कहना है कि ये क्रिएट इन साइंस के अकॉर्डिंग यू कैन, इफ यू वांट टू राइट डिबेट ऑन द, ये जनरेट डिबेट। ठीक है, जनरेट डिबेट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द साइंस पीजी लेवल स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब क्या किया, अभी हमने सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा था, अब हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे जैसे वेस्ट मैनेजमेंट को हम डिबेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब क्या होगा, बेस्ट मैनेजमेंट फॉर साइंस पीजी लेवल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पूरा क्या, पीजी लेवल स्टूडेंट क्या, साइंस लेवल, साइंस पीजी लेवल स्टूडेंट्स हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मेक द डिफरेंस इन नेगेटिव वॉस्ट द बेस्ट पीजी लेवल स्टूडेंट्स शुड बी फोकस ऑन डिबेट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग द वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, और आर्गूमेंट, affirmative science PG level student can develop new technology to the convert waste into the energy level, science PG level student can be develop ये बायो वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या है, ठीक है ना, ये कंक्लूजन ये सारा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बार्ड है, गूगल बार्ड भी एक एआई टूल से जो क्रिएट कर सकता है, आपके जो दिमाग में है, आपके जो माइंड में है, यू कैन यूज फ्रॉम this. So I think this is the end of this today's sessions. Tomorrow we will discuss the another one is, ठीक है, three another one is. Uh, so if you have any questions, you can ask. ठीक है, okay. This is my contact number and thank you very much for your attentions. और जो आपके दिमाग में माइंड में क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क। This is the today's and thank you, sir. It was very informative, excellent. Thank you very much. If you have any questions, any doubts regarding this, you can ask. Otherwise, we will end it. है ना? तो जो भी आपके दिमाग में, माइंड में जो भी क्वेश्चंस है, you can ask. ठीक है ना? तो थैंक यू डॉक्टर रजीता आनंद सिंह, अनिल कुमार चौधरी, शीजा एंड तपन बारुई। और बहुत ही अच्छा, गुड, वेरी गुड फॉर योर फीडबैक। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, जो भी आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आई है, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड इट। ओके, देयर इज, आई थिंक देयर इज अ नो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much for coming the sessions. We will discuss tomorrow the new topic about the co-educate chat GPT and Plato। ठीक है, टाइम बहुत लग जाता है एक्चुअली किसी भी टूल्स को समझाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।